Previous class, we have given some introduction about the power flow analysis. We told either its name is power flow analysis, load flow study. The meaning of all these is the same. You can call it as a power flow analysis, you can call it as a load flow study or load flow analysis. Meaning of this is to find out the steady state values of all parameters of the power system. When we perform power system analysis or when we perform the load flow study, our object is to find out the steady state parameters, steady state values of various parameters. And these parameters basically are four parameters, which are P means active power, Q is reactive power, V voltage and power angle at all the buses. And if we know all these four parameters at all the buses, P, Q, V, delta at all the buses, we know, if we know these, we can find out other parameters such as what are the losses, what are the power flows, and other studies. If you want to perform, say we want to perform economic dispatch, we want to perform state estimation, we want to perform any other study, we require the steady state analysis, because whatever we have at the normal operating condition, from there we have to move one point to the another point. So at operating point, what are the parameters? Then during the change, during the dynamics, what may be the parameters? So this study is very important because this is the operating condition. We find the operating condition of the system. And while describing that, we also told that the power system, when we do the analysis, steady state analysis, we make the single line diagram. Power system is a three-phase system. Since all the phases are same, phase A, phase B, phase C are same, only the difference of phase. So we perform on the basis of the single phase. And whatever the result of single phase, the same result will be for the phase B, same result will be for the phase C. Only the power angle 120 degree phase difference will be there. Otherwise, magnitude will be same. So we perform on the single phase basis, and we also told we perform it on the basis of per unit. Per unit means we consider the base quantities of voltage at voltage. We consider the base quantity of current, base quantity of impedance, and MVA. On the basis of MVA and voltage, we can find the base current, and on the basis of that, we find the base impedance. So finally, once we find the base values of voltage, current, impedance, and power, and the actual power at particular place divided by the base power, we find the per unit value. So this, what are the per unit value you have studied in the electrical machines or in the previous power system 1 classes, but here our purpose is not that. Our purpose is to describe, make the power flow analysis. So in that case, we have taken a one numerical question. We have taken the we have taken this example. In the previous classes, we have considered there are four buses, bus number 1, 2, 3, 4, and these four buses are connected through the transmission line, and each bus may have the generator or it may have the load. So we describe if it is having some generator, PG, suppose at bus number 1, PG1 plus JQG1, and at that time there is a load PL1 plus JQL1. So generation minus load, here it can be generation as well as load. So generation minus load is the net power injected to the bus. So this is the power injected to the bus. Here power injected to the bus number I can be written as PI plus JQI is equal to PG minus PL JQG. This you understand? Generated power, active power. It is a generated reactive power, load connected and reactive load connected. So this is the net power injected at bus number 1. Similarly at other buses. So this is the injected power. Now we know the injected power here. Then how? Then to solve this, there is a transmission. These are the transmission lines. We know the transmission lines, maybe the short transmission line, medium transmission line, long transmission line,
and these lines can be represented as equivalent to the pi network. If it is medium line, it is represented as pi. If it is long transmission line, it can be made equivalent to the pi network. Similarly, if it is short transmission line, your shunt parameter can be considered as 0. There is no shunt parameter there, no shunt admittances are there. So we can consider, means the value can be 0. Otherwise, we can say all the lines are represented as a pi network. This is a pi. This line is represented as this pi. This line 2 to 3 represented by this pi. Pi means this series and shunt parameters. And you see at each bus, at bus number 1, shunt admittance of line number 1, shunt admittance of line number this, shunt admittance of line number this. Since they are all connected to the ground, so they can be made equivalent to a 1. तीन admittances parallel में connected है, so there can be a equivalent admittance. So in this way, we can represent this as a common. And in addition to this, in addition to the transmission line, there are transformers also in the network. हमारा जो पावर सिस्टम है उसमें क्या होते हैं, एक तो जनरेटर्स, then transmission line, buses and transformers. Because there is changing of voltage level, generation can be at one voltage, transmission can be at different voltage, then can be sub transmission, then finally step down at distribution side. So the transformer are needed. And how the transformer are represented? Transformer have the, if you know the equivalent circuit of the transformer having primary side resistance reactance, secondary side resistance reactance, and shunt admittances. If we neglect the shunt admittances, so primary and secondary net impedance, and there is an ideal transformer. Means transformer can be represented like this. This is an ideal transformer. This is a admittance of this series admittance. Which impedance of 1 by Z is equal to admittance. Net admittance of the transformer in series plus this is the ideal transformer. Ideal transformer means no admittance is here, no impedance is here, and turns ratio is 8 to 1. Now this is a representation of transformer. Now, and transmission line, you have seen transmission line is a pi network. This is a transformer. So how the solution will be made? If we are able to convert this transformer into pi network, तो क्या होगा? Either it is a transmission line or transformer. Everywhere there is a pi network. And we know in the pi network there is series impedances and shunt admittances. Shunt admittances can be grouped to be 1. So simple circuit will be simple. So before, just to describe this, okay, let us have this. How this can be made? Suppose this is ideal transformer. So current. So this is a transformer. Current injected to the ith bus. What will be the formula for current injected into the transformer here? This IT will be equal to this voltage minus this voltage, okay, divided by impedance. Or you can say this voltage, and what if here voltage is VJ? Here voltage is VJ. What will be voltage on this side? Secondary side में अगर voltage आपका VJ है, jth bus. This is the ith bus. This is the jth bus. At jth bus, the voltage is VJ. What will be voltage referred on the primary side? Do you know this? अगर आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड का वोल्टेज V2 है, तो व्हाट विल बी इस वोल्टेज ऑन द प्राइमरी साइड? इलेक्ट्रिकल मशीन में आपने पढ़ा क्या फॉर्मूला होता है? अगर इधर वोल्टेज V2 है, V2 डैश हो जाता है, होता है, एंड V2 डैश व्हाट इज द इक्वल टू V2 डैश इज इक्वल टू A टाइम्स A मींस टर्न्स रेशियो. सो दिस VJ referred on this side will be the AVJ. Is this point clear or not? So VI minus AVJ referred on this. ऐसे ही ये admittance referred on the primary secondary side में है. So this admittance referred on the primary will be the YT by A square. A is the turns ratio. In this way, if you make it open, so this is VI into this is a VJ into this. This is one equation. Okay. Now, if you write the equation from this side, IT dash current injected at bus number J, IT dash is equal to this voltage here, VJ minus this voltage divided by this. So what will this is VJ? What will be voltage here? If this voltage is VI, referred on the primary voltage, referred on the secondary side. Primary voltage is V1. If you refer it on the secondary side, it will be V1 dash. और formula क्या होगा V1 dash का? VI by A.
सेकेंडरी से प्राइमरी में जा रहा है तो ए का मल्टीप्लाई होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी के में जा रहा है तो ए से डिवाइड हो रहा है। एक फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? पावर ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा होगा, दिस इज द फॉर्मूला, डिवाइड बाय वी। सो यू ओपन दिस इक्वेशन, so this is the equation. Here you can say VI VJ means net current conducted from both the side, IT and IT dash. This is the equation. These are the two equations. Now we are saying that in place of this transformer, in place of or we can say this transformer is equivalent to this pi network. जैसे ट्रांसमिशन लाइन का तो आपको पता है कि सीरीज एंड शंट, ट्रांसफार्मर को हमने कहा ट्रांसफार्मर भी उसी की इक्विवेलेंट है। ट्रांसफार्मर इज लाइक दिस VI एंड I2I, ट्रांसफार्मर इज आल्सो लाइक ए पाई नेटवर्क। ट्रांसफार्मर को भी हमने पाई नेटवर्क इक्विवेलेंट मान लिया, जैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को इक्विवेलेंट टू द पाई नेटवर्क बनाते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर को भी इक्विवेलेंट टू द पाई नेटवर्क माना। तो नाउ व्हाट आर द इक्वेशन फॉर दिस? करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस IT is equal to this VI minus VJ divided VI minus VJ multiplied by this admittance plus VI divided by this VI multiplied by this admittance. Okay, this formula is okay or not? ठीक है, ऐसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। Similarly, current flowing from this VJ minus VI into this and VJ into I3, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। ओपन दिस इक्वेशन अगेन, यू राइट इन द VI VJ फॉर्म। दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस पाई नेटवर्क एंड these are the two equation for this transformer and we are saying they are the same. हम क्या कर रहे हैं, इसी का इक्विवेलेंट वो है, इसका मतलब है these two equations should be the same of these equations should be same of these two equation। दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमने कहा ट्रांसफार्मर का जो नेटवर्क है वही नेटवर्क हमारा पाई के इक्विवेलेंट है, तो दोनों इक्वेशन जो ट्रांसफार्मर की लिखी गई है और जो पाई नेटवर्क की इक्वेशन लिखी गई है दे शुड बी दी आइडेंटिकल। तो उनको कंपेयर कर सकते हैं, IT हियर एंड IT देयर, IT डैश ये, कंपेयर बोथ द इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन को इन दो इक्वेशन से कंपेयर करें। देखो यहाँ क्या है, VI का मल्टीप्लाई क्या है YT बाई A स्क्वायर, और इसमें VI का मल्टीप्लाई क्या है Y1 प्लस Y2। इसका मतलब क्या है Y1 प्लस Y2 इज इक्वल टू दैट, और इसको if you compare that you can find the after comparison you will find Y1 is equal to this, Y2 is equal to this and Y3 is equal to this। मतलब क्या हुआ, जो ट्रांसफार्मर था ये क्या है, व्हाट इज YT? YT क्या है? एडमिटेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का एडमिटेंस है, और ये क्या है, टर्न रेशियो। तो इन और देखिए यहाँ एवरीवेयर आइदर इट इज Y1 Y2 Y3 इज रिटन, Y1 Y2 Y3 इज रिटन इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफार्मर एडमिटेंस एंड इट्स टर्न रेशियो। मतलब क्या हुआ, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर सर्किट को हम पाई के इक्विवेलेंट बना सकते हैं। नाउ इसको बनाने से होगा क्या फायदा, नाउ अब हमारा जो ये सर्किट था इसमें या तो ट्रांसफार्मर हो या ट्रांसमिशन लाइन हो, एवरीवेयर देयर विल बी पाई नेटवर्क। तो हर जगह अगर पाई नेटवर्क है और उसके बाद इनको हम क्लब कर सकते हैं। तो फाइंड, यू कैन से, यू रिमेंबर दिस फिगर, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। दिस फिगर बिकम दैट, इज दिस क्लियर और नॉट? इस फिगर में और फिगर में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? जो फिगर मैंने ऊपर दिखाया और इस फिगर में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? इसमें भी 1 और 2 के बीच में एडमिटेंस 2 3 एडमिटेंसेस है, और ये 3 एडमिटेंसेस यहाँ थी, Y10 Y20 Y3 Y10, ये इसकी 3 इक्वेशन जो थी आपकी, वो तीनों एडमिटेंसेस को इक्विवेलेंट Y10 हो गया। यहाँ पे आपकी कितनी थी, 1 2 3 थी, उसका इक्विवेलेंट ये बन गया। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर नहीं है तो आप फिर इसे देखो एक बार, देखिए 1 2 3, ये जो 3 आ रही है ना, इन तीनों का सम, क्योंकि इनकी एडमिटेंसेस का सम Y10 हो गया, इसका सम
y2 0 हो गया, 1 2 3 इन एडमिटेंसेस को सीधा सम करेंगे, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया y3 0 हो गया, ऐसे ये y4 0 हो गया, तो ये बन गया सर्किट हमारा, ये सर्किट बन गया। ठीक है, यस सर। इस सर्किट को नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना हमें आता है। नोडल एनालिसिस में हम क्या निकालते हैं, नोडल एनालिसिस में करंट और वोल्टेज। यस सर। बट पावर इन द पावर सिस्टम वी डोंट रिक्वायर करंट एंड वोल्टेज एंड लोड इज नॉट इन टर्म्स ऑफ द एडमिटेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बेसिक इस एनालिसिस का और जो हमारी एग्जिस्टिंग एनालिसिस है, एग्जिस्टिंग मींस नोडल एनालिसिस, केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ और जो भी आपका थ्योरम्स, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, उसमें हमारा लोड रेजिस्टेंस के टर्म्स में होता था, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस एडमिटेंसेस के टर्म्स में होता था, एंड आपको करंट और वोल्टेज निकालना होता था। बट इन द पावर सिस्टम आवर ऑब्जेक्ट इज नॉट टू फाइंड आउट द करंट एंड करंट, आवर ऑब्जेक्ट विल बी फाइंड आउट द voltage and power angle and finally active power, reactive power. So this is our object, so that is different. So finally to find out the PQV delta, we apply our existing knowledge how to solve this circuit with the help of nodal analysis. पहले तो हम ये देखेंगे इस सर्किट को नोडल एनालिसिस से कैसे सॉल्व करें, जिससे तो फिर इसको मॉडिफाई करके क्या करेंगे, पावर फ्लो एनालिसिस के लिए PQV डेल्टा के लिए करेंगे। तो इसमें हमने बेसिक नॉलेज अप्लाई किया। बेसिक नॉलेज क्या है, देखिए, इफ वी अप्लाई द नोडल एनालिसिस और केसीएल, करंट इंजेक्टेड हियर I1, करंट इंजेक्टेड इज इक्वल टू I1, दिस I1 इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस करंट, दिस करंट, दिस करंट। ठीक है, यस सर। ओके, दिस करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ दी करंट्स एंड please listen, this current is equal to this current. Now you see, right, I1 is equal to what is this current? नहीं पता चल रहा काम, V1 जरूरत होगी जब मैं बता दूं, minus V2 multiplied by Y12 plus this current V1 minus V3 multiplied by Y14, then V1 minus V4 multiplied by Y14, then V1 divided by V1 multiplied by Y10. Is this clear or not? This equation, हाँ भाई, लास्ट लाइन, लास्ट में जो बैठे हैं, is this equation clear to you or not? Similarly, we have taken this in the tutorial class also. Similarly, equation you can write for the node number 2, you can write the node number 3, you can write the equation for the node number 4. Finally, these are the 4 equations. यस सर। Okay. If no discussion please. If these equations are rearranged in the form of V1, V2, V3, V4, मतलब ये V1, ये V1, ये V1 taking at one place, then V2 at another place, then V3, V4, and these equation will be like this. देखिए, अगर आप इन इक्वेशन को if you write, इसको एक स्टेप छोड़ दिया है, you have to write one more step, V1, 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 V1 and V1 is multiplied by Y10, Y20, Y13 and Y14. Then we will take the V2. So I1, ये V1 इधर आ जाएगा, and these equation can be written in the matrix form like this. इसको अच्छी तरह देख लीजिए, समझ आ रहा है? Are you getting this point or not? ठीक है? So these 4 equations can be written in the matrix form like this. Now this can be written in short like this. These are called I1, I2, I3, I4 are called the current injected at buses. जो different buses हैं उस पे current injected. So this is called the injected current. These are what are the V1, V2, V3? Voltage of buses. So there is a relation between the voltage of buses and admittance between the current. This is called the bus admittance matrix. इसका नाम है bus admittance matrix. And for forming, now remember again, अगर अभी तक भी आपने जो बताया है वो नहीं समझा हो, तो लास्ट में नट एंड सेल में क्या समझने की जरूरत है कि for forming this bus, we need not to write the above 4 equations of KCL. KCL से जो ऊपर 4 इक्वेशन लिखी है उसके थ्रू निकालने की जरूरत नहीं है. We can directly write this.
कैसे? व्हाट इज y11? यहाँ देखिए, दिस इज ए कैपिटल y, दीज आर द कैपिटल एंड दिस इज द स्मॉल y। ये क्या बता रहा है? कैपिटल y11 क्या बता रहा है? कैपिटल y1 क्या बता रहा है? इट इज सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस। जो कौन सी है? y10 क्या है? y10 क्या है? व्हाट इज y10? हाँ भाई बताओ, कौन बताएगा? y10 क्या है? आप बताओ। हाँ भाई, हाँ बताओ। हाँ, व्हाट इज y10? माइक दे दे, भाई दे क्या? हाँ, एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन भाई रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रही है भाई, एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन नोड 1 टू ग्राउंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट को दो माइक। व्हाट इज लाइन 1 और 2 के बीच एडमिटेंस है? ठीक है, ओके। सर एडमिटेंस बिटवीन 1 और 1 and 3। ओके ओके। ध्यान रखिए, प्लीज लिसन। y11 keep quiet please। y11 is sum of all the admittances connected at bus number 1। ठीक है कि नहीं? बस नंबर 1 पे जितने भी एडमिटेंसेस थे उन सबका सम y11 है। ऐसे ही y22 देखो, y22 all the admittances connected at bus number 2। y33 all the admittances connected at bus number 3। and this all the admittances connected at bus number 4। Now capital Y12 क्या है? यह y12 13 13 14 14 सेम है का नहीं है? मतलब क्या हुआ? कैपिटल Y12 is nothing but minus of the admittances connected between node 1 and 3। ठीक है, मतलब देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? y11 y22 y3 they are equal to the sum of all the admittances connected to the bus number to that bus number 5 है 5 5। ऐसे ही ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है? ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 1 और 2 2 3 ऐसे होंगे ना, तो उनके बीच में जो एडमिटेंसेस है वो विद माइनस साइन है। ओके, यहाँ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है। व्हाट इज दिस कैपिटल y11? इसको क्या कहते हैं? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बाई बस। ये तो बाई बस के एलिमेंट्स हैं, इसको एडमिटेंस नहीं कहेंगे। वी विल नॉट कॉल इट एज एडमिटेंस, दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ बाई बस। जब आपसे पूछते व्हाट इज y11 और व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द बाई बस, तो आप कहेंगे सम ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस। ये एडमिटेंसेस है वहां, दोनों का मतलब समझ गए डिफरेंस? तो देखिए, कैपिटल y एडमिटेंस बिटवीन i and j, i is the current injected at bus number 1 or i and this is the I. In short, it can be written as I bus is equal to y bus v bus। तो अगर आपको कोई भी देखिए, आप एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे ये 0 क्यों आ रहा है? 2 4 यहाँ होना क्या चाहिए? y24 क्या होना चाहिए? All the admittances y24 is the admittance connected between node 2 and 4। 2 and 4। तो यहाँ देखिए 2 and 4, 2 और 4 के बीच में कोई एडमिटेंस कनेक्टेड है नहीं है, इसलिए 0 है वहाँ। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? यस सर। जब कनेक्टेड ही नहीं है तो वो 0 हो गया। तो इस तरह विदाउट एक्चुअली राइटिंग द इक्वेशन you can write this y bus, this is called y bus, you can write it। okay, यहाँ तक is there any question up to now? अब देखिए, आपको ये पता लग गया कि y bus ऐसा बनाते हैं मैनुअली। हाउ द y bus इज फॉर्म, मैनुअली कैसे बनाएंगे? तो एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर ट्यूटोरियल में आपको y bus कैसे बनाना है वो क्वेश्चन देना है। दूसरा, बट इन द पावर सिस्टम सपोज हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द y bus का साइज क्या है? यहाँ पे 4/4 4 क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ बसेस हमारी 4 है। नंबर ऑफ बसेस अदर देन ग्राउंड, रुक जा मैं लग अदर देन द रेफरेंस बस को छोड़ के जितनी भी बसेस हैं वो 4 है, इसलिए इसका साइज 4/4 है। लेकिन हमारा पावर सिस्टम, अगर
हरियाणा का पावर यूटिलिटी देखें तो उसका साइज क्या होगा, कितनी बसेस होंगी? सपोज लेट द टोटल नंबर ऑफ बसेस आर 53। हरियाणा पावर यूटिलिटी का ट्रांसमिशन सिस्टम HBPNL का देखें, सपोज टोटल नंबर ऑफ बसेस आर 53। तो अब उसका साइज कितना होगा? अगर आपको पूरा पावर सिस्टम पावर यूटिलिटी का नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन निकालना होगा तो साइज क्या होगा बाई बस का? 53/53 होगा नहीं? अगर बस 53 है तो 53/53। तो अगर 53/53 का सिस्टम है, उतनी इक्वेशन लिख के अगर अपने बाई बस बनाना हुआ तो देन इट विल बी 1.3 पे कर ले, इट विल टेक टाइम। और ये बार बार अगर आपको बार बार एनालिसिस करना पड़े, करना पड़े, कभी 63 करना पड़े, कभी फॉल्ट एनालिसिस में एक बस कम हो गई, एक बस ज्यादा हो गई, तो आपको बार बार बाई बस बनाना पड़ेगा। although I described how to form the by bus and it is simple, but there is a need to form the by bus using the computer program। ठीक है कि नहीं? अगर आपने एक बार कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख लिया तो आपने कुछ डाटा देना है किसके बीच में क्या क्या कनेक्टेड है, इट विल ऑटोमेटिकली फॉर्म द बाई बस। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये भी समझने की जरूरत है कि हम हाउ टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर फॉर्मिंग द बाई बस। वो तभी लिख सकते हैं जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता लग जाए और आप एक न्यूमेरिकल कर लें बाई हैंड मैनुअली, तो आपको कंसेप्ट पता लग जाएगा, फिर आप प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। ओके, सो हियर नो डिस्कशन प्लीज। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द एल्गोरिथम फॉर फॉर्मिंग द बाई बस। मतलब बाई बस कैसे बनाएंगे कंप्यूटर में, तो उसका एल्गोरिथम फॉर फॉर्मिंग द बाई बस। ठीक है, सो नाउ बी कंसंट्रेट ऑन दिस। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये देखते हैं हमारा जो पावर सिस्टम है नेटवर्क, वो कितना, उसका साइज क्या है। इफ द साइज ऑफ नेटवर्क इज से 53, टोटल नंबर ऑफ बसेस आर 53, तो हमें पता है साइज बाई बस का साइज होगा 53/53। मींस वी विल टेक द एन। सबसे पहले देखेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स आर देयर, नोड भी बसेस आर देयर। तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे, उसका साइज कहेंगे n/n, एक मैट्रिक्स। और मैटलैब में जैसे मैंने आपको बताया कमांड है जीरोज, आपने लिख दिया जीरोज n/n ब्रैकेट में, तो वो n/n का साइज मतलब 53/53, तो 53/53 का एक मैट्रिक्स बना देगा जिसके और एलिमेंट जीरो हो गई। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, एक n/n का जीरो मैट्रिक्स ले लिया, एक ही कमांड से बन जाएगा। वो पूछेगा क्या कि भाई पावर यूटिलिटी का साइज क्या है या टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, ये पूछेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, उतने भाई 53/53 n/n का एक मैट्रिक्स बना देगा जिसके सारे एलिमेंट जीरो। ओके, इसका कमांड आपको मालूम है। नाउ प्लीज लिसन, नाउ वी विल टेक वन ब्रांच ऑफ ए नेटवर्क एट ए टाइम। हम जैसे सपोज टोटल, फिर क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, ब्रांचेस मींस कितनी ट्रांसमिशन लाइंस है। पहले तो क्या नंबर ऑफ बसेस कितनी है, ठीक है, फिर ट्रांसमिशन लाइन कितनी है, और हर ट्रांसमिशन लाइन का किस किस के बीच में कनेक्टेड है, और उसका एडमिटेंस क्या है, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको, तभी तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाएगा। तो आपको बताना क्या है, हर एक ट्रांसमिशन लाइन की एडमिटेंस क्या है और किस किस के बीच में कनेक्टेड है। तो मतलब अगर वो आई और पी के बीच में कनेक्टेड, सपोज बस नंबर आई और बस नंबर पी के बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है जिसकी एडमिटेंस बाई आई पी है, एडमिटेंस आपकी बाई आई पी स्मॉल, ये कैपिटल लिखा, कैपिटल नहीं, दिस इज स्मॉल, समझिएगा नहीं। आई और पी के बीच में एक एडमिटेंस कनेक्टेड है, आई और पी के बीच में एक एडमिटेंस कनेक्टेड है जिसके एडमिटेंस बाई आई पी है। तो इसे पता लग गया, आई पता लग गया, पी पता लग गया और बाई आई पी, तीन चीजें पता लग गई। तो ये क्या, अब आपने ये मॉडिफिकेशन करनी है क्योंकि उसके सबके अंदर जीरो जीरो है, पहले से ही ये सब जीरो है, वाई और ये दोनों चीजें जीरो है, ये जीरो और जीरो। तो आप क्या करेंगे, वाई आई पी एडमिटेंस है, वाई आई पी एडमिटेंस आई और पी के बीच में कनेक्टेड है। वाई आई पी क्या आता है, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स में क्या थे, डायगोनल एलिमेंट्स में ऑल द एलिमेंट्स कनेक्टेड बिटवीन द डायगोनल, जैसे बाई आई निकालना, कैपिटल बाई आई, तो क्या ऑल द एलिमेंट कनेक्टेड बिटवीन द कनेक्टेड एट बस नंबर आई।
तो आई पे आई और पी वाला भी कनेक्टेड होगा, आई और जे वाला भी होगा, आई और जीरो वाला भी होगा। तो आई और हमने आई और पी लिया है तो उसमें पहले में ऐड हो गया। मतलब आईपी एडमिटेंस कहाँ कहाँ अफेक्ट करेगा, जैसे अगर आप ये देखो, यहाँ देख लो, जैसे सपोज करो ये 2-3 है, 2-3 कहाँ अफेक्ट कर रहा है, 2-2 पे इफेक्ट करेगा, बाई 2 कहाँ पे, 2-2 पे होगा, 3-3 पे होगा कि नहीं होगा, 2-2 पे होगा, 2-3 पे होगा, 3-3 पे होगा, और कहाँ होगा, 2-3 में होगा और 3-2 में होगा। कोई भी एलिमेंट है 4 जगह तो हो सकता है ये। तो यही हमने यहाँ मॉडिफिकेशन किया है, इसमें 4 मॉडिफिकेशन। एक तो बाई आई पी जो पुराना एलिमेंट था उसमें आपने बाई आई पी एड कर दिया, इसमें कर दिया, और कैपिटल बाई आई पी क्या, माइनस ऑफ दैट बाई 2-3 क्या था, माइनस ऑफ बाई 2-3, ठीक है नहीं, एलिमेंट बिटवीन द 2 एंड एलिमेंट of second row and third column was equal to the minus of by 2-3 means element connect admittance connected between 2 and 3। तो ये मॉडिफिकेशन हो गया। ऐसा करके हमने एक पहले एक ट्रांसमिशन लाइन लिया, दूसरी लिया, तीसरी लिया, ऐसा सभी लाइन लेंगे और ये मॉडिफाई होता जाएगा। हो गया। उसके बाद में ये तो हो गई ऑल द एलिमेंट कनेक्टेड बिटवीन द 2। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो 2 के बीच में कनेक्ट ना होकर बस और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है, और बस और ग्राउंड के बीच में अगर कनेक्टेड है तो वो केवल डायगोनल एलिमेंट को अफेक्ट करते हैं। देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली, डायगोनल एलिमेंट्स में ये 0 है, 0, 3, 0, 2, 0, 1, 0 और कहीं नहीं है, दे आर ओनली इन द, सो देन वी डू दिस मॉडिफिकेशन। और ऐसे ही ये कंटिन्यू घुमाएंगे, जितनी भी लाइंस हैं यहाँ पे इतने बार ये फॉर लूप घूमेगा, और जितनी लाइन है फॉर लूप ये घूमेगा। एंड फाइनली जो हमारा बाईबस है दैट विल बी रेडी, क्योंकि बाईबस में हमने 0, 0, 0 ऐड किया था। मींस बाईबस वाज एन एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट 0 इन द बिगिनिंग। अब ये मॉडिफाई होता गया और फाइनली क्या हुआ, ये बन जाएगा। तो ठीक है, सो दिस बाईबस इज द मेथड ऑफ फॉर्मिंग द बाईबस। आपको कंसेप्ट पता लग गया, आपको बेसिक पता लग गया कंसेप्ट हाउ टू फॉर्म द बाईबस। अब इसका प्रोग्राम कैसे, फॉर लूप कैसे लगाना है, इनपुट क्या क्या देना है, और फॉर लूप 2 बार फॉर लूप कैसे लगाना है। ठीक है, जो आपने सी लैंग्वेज में, इसमें कोई कुछ मैटलैब की बात नहीं, जैसे सी में लिखते थे वही है, सेम चीज है। सी की तरह आप लिखोगे एंड इफ यू रन इट एंड ऑन द मैटलैब इट विल रन। सी की तरह जैसा आप प्रोग्राम लिखेंगे मैटलैब पर रन करेंगे, ये एज इट इज रन करेगा। तो इसमें मैटलैब वाली बात अभी कुछ नहीं है, सी की तरह प्रोग्राम लिखो, उसे रन करो, इट विल बी दी बाईबस। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क। हाँ भाई, लास्ट वन। हाँ भाई, यस लास्ट। हाँ, इसमें से लास्ट, सेकंड लास्ट से पूछो, सेकंड लास्ट। हाँ यस, यू आस्क द क्वेश्चन। हाँ, कोई भी क्वेश्चन पूछो, कुछ भी आस्क द क्वेश्चन। देन गर्ल्स रेडी। एनी क्वेश्चन? यस प्लीज। नो सर, what is admittance? Yes. Next question from the girls section. But any question? You will take both. अभिषेक से इसके मुंह में दे दे। पल्ली आगे सेट जा, आगे सेट जा पल्ली। अच्छा बस छोड़ रहे हैं।
Yes, please listen.